بعض اوقات آپ کی زندگی کے ماضی کے تلخ واقعات آپ کی زندگی پر اتنا گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ گھاؤ سالوں بعد بھی بالکل تازے کا تازہ رہتا ہے۔ ناول زون میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں ناول کی اگلی قسط۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ گولو آ گئے ہو تم؟ ہبا نے آنکھیں موندے ہوئے ہی اس سے پوچھا۔ اس نے سوچا وہ کھیل کر آ گیا ہوگا، لیکن واپس دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں چاچی کے بھائی کو کھڑا دیکھ کر وہ خوف سے ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ہبا کی ریڑھ کی ہڈی تک میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ دونوں گھر پہنچے۔ تاشفین کا خراب موڈ دیکھ کر حمزہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اس نے گاڑی پارکنگ لاٹ میں روکی تو تاشفین نے اپنی طرف کا گیٹ اوپن کیا اور اندر کی طرف چل دیا۔ اوہ بے مروت کہیں کا، کہا بھی نہیں کہ تم بھی چلو، ابھی میں واپس چلا جاؤں تو؟ کیسے جا سکتا ہوں؟ ردا نے کہا تھا بریانی بنی ہے۔ آخر بریانی کا سوال ہے؟ چلو یار اندر ہی جاتا ہوں، کیا یاد کرے گا بے مروت کھڑوس انسان۔ خود سے سوال جواب کرتا وہ گاڑی سے اترا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہبا بدحواسی کے عالم میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ سامنے سے آتے تاشفین کو نہ دیکھ سکی اور زور سے اس سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، تاشفین نے اسے کمر سے تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے سیڑھی کی ریلنگ مضبوطی سے پکڑ لی، ورنہ دونوں گر جاتے۔ کیا کر رہی ہو ہبا؟ ابھی گر جاتی تو؟ تاشفین اسے سیدھا کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے سارے بال چہرے اور گردن پر آ گئے تھے۔ تاشفین نے ہاتھ سے اس کے بال پیچھے کیے تو اس کے خوبصورت چہرے سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ لائٹ میک اپ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت گھنی پلکیں سیاہ آنکھوں پر سایہ فگن ہو رہی تھیں۔ وہ فین جی کچن میں جا رہی تھی، بریانی دم پر رکھی تھی تو دیکھنے۔ ہبا نے اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے بتایا تو اس کی آواز پہ تاشفین ہوش کی دنیا میں آیا اور ہبا کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لے گیا۔ روم میں لا کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے حق کر لیا۔ کیوں اتنی پیاری لگ رہی ہو میری جان؟ نظر لگوانے کا ارادہ ہے کیا؟ حق چھوڑ کر اس نے ہبا کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ فین جی، ردا نے کیا یہ سب؟ ہبا اس کے رد عمل سے پریشان ہو رہی تھی۔ اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے اور اس نے بے ربط جملوں میں اپنی بات مکمل کی۔ تاشفین کی نظر اس کے گلابی ہلتے ہوئے گداز ہونٹوں پر پڑی تو بے اختیار ہو کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتارنے لگا۔ ہبا نے بلی کی طرح آنکھیں زور سے میچھی ہوئی تھی۔ اس سے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں تو تاشفین نے ایک ہاتھ سے اسے کمر سے تھام لیا۔ ہبا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں پیچھے ہوا۔ ہبا کو اپنی سانس اب رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تاشفین کی شرٹ کے کالر کو زور سے پکڑ کر مزاحمت کی تو اس نے ہبا کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ ہبا جلدی سے 2-3 قدم پیچھے ہوئی اور زور زور سے سانس لے کر اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ تاشفین نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس اپنے پاس کیا اور اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان، وہ اس کے بال کان سے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ہبا کو اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، دل میں ردا کو 100 باتیں سنا رہی تھی۔ بہن جی وہ نیچے ردا کھانا، ہبا نے اٹک اٹک کر کہتے اس سے دور ہونے کی کوشش کی۔ ایک شرط پر بھیجوں گا نیچے، ورنہ ردا کھانا نیچے واش روم سب بھول جاؤ میری جان۔ تاشفین نے شرارت سے دیکھتے ہوئے اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر پاس کر کے کہا۔ کیسی شرط؟ ہبا اس کی قربت سے مسلسل گھبرا رہی تھی، جلد از جلد اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ مجھے بھی کس چاہیے یہاں پر، تاشفین نے انگلی اپنے گال پر رکھتے ہوئے کہا تو اس کی شرط سن کر ہبا کے اوسان خطا ہو گئے۔ نہیں فین جی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کو اب نظر اٹھانا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈور لاک کر کے آتا ہوں۔ اس نے ہبا کو چھوڑا اور ڈور کی طرف قدم بڑھائے تو ہبا نے اس کا بازو تھام لیا۔ فین جی پلیز نہ کریں ایسے، اس نے روحان سی ہو کر معصومیت سے کہا تو تاشفین کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے ہبا کے دل پر ہونٹ رکھے اور شدت سے اپنے ہونٹوں کا دھڑکتا لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ جاؤ میری جان، میں بھی فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ آخر تاشفین نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہبا نے جان چھوٹنے پر شکر کیا اور مرر کے سامنے کھڑے ہو کر پھیلی ہوئی لپسٹک صاف کرنے لگی۔ ردا کو دل میں گالیوں سے نوازتے ہوئے وہ روم سے نکل گئی۔ حمزہ نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ بھی آرام سے 3 سیٹر صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی کے چینل بدلنے لگا۔ السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ اور بھائی کہاں ہیں؟ ردا سیڑھیاں اتر کے کچن کی طرف جا رہی تھی تو اسے وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ سیدھا اسی کے پاس چلی آئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ تمہارا بے مروت بھائی آ گیا تھا بھاگ کر، پہلے مجھے کیا پتا روم میں ہوگا؟ حمزہ نے منہ کا زاویہ بگاڑ کر کہا تو ردا ہنسنے لگی۔ وہ بھی ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ردا اس کے چہرے کے نقوش کو نظر میں اتار رہی تھی۔ حمزہ کو مسلسل خود پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا تو اس نے نظر اٹھا کے سامنے ردا کو دیکھا۔
जो टिकटिकी बांध कर उसे देख रही थी। उसकी नज़रों में इस वक्त जो मफ़हूम उसे नज़र आया, उसने हमज़ा को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। रिदा ने उसके देखने पर गड़बड़ा कर अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला। हमज़ा, आप भी मेरे रूम में जाके फ्रेश हो जाएं, तब तक खाना भी लग जाएगा, फिर इकट्ठे लंच करते हैं। रिदा ने सोफे से उठते हुए कहा तो हमज़ा भी उसकी नज़रों को महज वहम समझकर सर झटक कर उठ गया। आप भाई चली चची आ रही होंगी। वो खौफज़दा नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी, जिसकी नज़रों से हवस टपक रही थी। वो उसके पास आ रहा था। हिबा डर कर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसने दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही हिबा को बाजू से दबोच लिया। कहाँ भाग रही है कमीनी, बड़ी मुश्किल से तो हाथ आई है। खबासत से कहते उसने हिबा का दुपट्टा खींचा तो उसने दोनों हाथ सीने पर रखते हुए उसे दुपट्टा खींचने से रोका। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे। खौफ से उसका रंग सफ़ेद पड़ रहा था। छोड़े मेरा दुपट्टा, हकलाते हुए उसके मुंह से 2-3 लफ्ज़ ही अदा हुए। बड़ी मुश्किल से तो ये मौका हाथ आया है, कैसे छोड़ दूँ? खबासत से दांतों की नुमाइश करते उसने हिबा के दोनों बाजू दबोचे तो हिबा की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह निकले। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो वैसे का वैसा ही बंद था। हिबा ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे धक्का दिया तो वो बिस्तर पर गिर पड़ा। हिबा ने बगैर 1 सेकंड जाए कि बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अभी वह सहने पहुंची थी तो फिर उसने आकर पकड़ लिया। मुझे धक्का देकर भागेगी बेगैरत, अब भाग कर दिखा। उसने हिबा का रुख अपनी तरफ किया और उसका एक बाजू मरोड़ कर उसकी कमर से लगाया। तकलीफ से हिबा के मुंह से सिसकी निकली। जैसे ही वो उस पर झुकने लगा, हिबा ने दाएं हाथ से उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ पड़ने से हिबा के बाजू पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी तो हिबा ने झटके से अपना बाजू से छिड़ाया और दूर हो गई। तभी दरवाजे से नाज़ो चाची अंदर दाखिल हुई। वो तैश से हिबा की जानिब बढ़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई को थप्पड़ मारेगी बेगैरत मनहूस? चाची ने उसे बालों से पकड़कर झिंझोड़ा। बाजी, मैंने इससे आपका पूछा तो मेरे साथ बदतमीजी करने लगी और घर से निकालने लगी। जब मैं नहीं गया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। उसने झूठ बोलकर सारा इल्ज़ाम हिबा के सर पर डाल दिया। तो होती कौन है मेरे भाई को घर से निकालने वाली मनहूस? तेरे बाप का घर है क्या? एहसान फरामोश। सारी ज़िंदगी तुझे खिलाया पिलाया अपने घर में रखा, आज तो मेरे भाई को घर से निकालेगी? लगातार उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए उसे 700 बातें सुना रही थी। चाची ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। ये बदतमीजी कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। हिबा ने अपने हाथों से चेहरा छुपाते हुए कहा। वो लगातार हिचकियों से रो रही थी। अल्लाह तौबा, बाजी कितनी झूठी है ये, मुझ पर कितना घटिया इल्ज़ाम लगा रही है। मैं आज के बाद कभी तेरे घर नहीं आऊँगा, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो कानों को हाथ लगाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा तो चाचू से छोड़कर अपने भाई के पीछे भागी और उसे वापस बुलाने लगी, लेकिन वो उसकी बात पर बगैर कान धरे बाहर निकल गया। तू बेगैरत, तेरी वजह से मेरा भाई नाराज़ हो गया है। तुझ में कुछ शर्म कुछ गैरत है कि नहीं? कैसे इल्ज़ाम लगाया तूने उस पर? चल, आज तुझे मैं सबक सिखाऊंगी। वो तैश में उसे घसीटते हुए छत पर बने स्टोर रूम में ले गई और अंदर फेंक कर दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। चाची, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, झूठ नहीं बोल रही, मुझे निकाले यहाँ से। बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मुझे निकालना यहाँ से। मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी। बचपन से ही उसे अंधेरे और बारिश में बिजली की कड़क से बहुत डर लगता था। वो रोती रही, उसकी मिन्नतें करती रही, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके नीचे चली गई। हिबा दरवाज़ा पीटते हुए डर के वहाँ दरवाजे के साथ ही सिमट कर बैठ गई। ताशफीन फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में आया तो हमज़ा पहले से वहाँ बैठा सब डिशेस खोल खोल कर चेक कर रहा था। हिबा और रिदा ने खाना लगाया तो ताशफीन भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। हिबा भी उसके साथ ही अपनी चेयर पर बैठ गई तो रिदा हमज़ा के साथ वाली चेयर घसीट कर बैठ गई। हिबा ने ताशफीन की प्लेट में खाना डालकर उसे दिया तो उसके खूबसूरत डिम्पल्स ने नुमाइश की। हमज़ा उसकी मुस्कुराहट देखते हुए मसनूई खांसी खांसने लगा। फिर अपनी प्लेट में खाना डालते टेढ़ी नज़रों से ताशफीन पर नज़र डाली तो वह हिबा को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। हद है वैसे रिदा, मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। आखिर मेरे भी कुछ अरमान हैं, मुझे भी कोई खाना सर्व करे, मेरे लिए खाना बनाकर ऑफिस भेजे। हमजा ने उसकी इग्नोरेंस पर कुटते हुए रिदा से कहा तो रिदा मुस्कुराने लगी। अल्लाह आपके नेक अरमान जल्दी पूरे करे हमजा, रिदा ने उसके चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए कहा। वैसे रिदा, इस गधे को कौन देगा अपनी बेटी? उसकी बंदर की जैसी शक्ल को देख के लड़की ने मना कर देना है। ताशफी ने उसे सुलगा कर दिन का बदला लिया। हमजा का मुंह हैरत से खुल गया। मैं तुम्हें गधा लगता हूँ? गधे बंदर तुम खुद हो। भाभी देख रही हैं आपसे, आपके इकलौते देवर के लिए क्या बोल रहा है? हमजा ने अपनी नोक झोंक में हिवा को भी घसीटा तो सर पटाकर ताशफीन को देखने लगी। हमजा भाई, ताशफीन जी मजाक कर रहे हैं, आप खाना शुरू करें प्लीज़। हिबा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो ताशफीन और रिदा दोनों ने
ताशफीन जी और प्लीज़ कहने पर हैरत से हिबा को देखा। उसके इस अंदाज पर ताशफीन को टूट कर प्यार आया। वो उसके दोस्त के सामने इतने अच्छे से बोल रही है तो बाकी किसी के सामने क्या शर्मिंदा करवाएगी। उसने दिल में फूफा की बातों से नफी की अपनी प्लेट पर झुक गया। वाह हिबा, क्या टेस्ट है तुम्हारे हाथों में, बहुत मज़ेदार खाना बना है, दिल कर रहा है तुम्हारा मुंह चूम लो। रिदा ने उसके खाने की तारीफ करते हुए छेड़ा तो हिबा की मुस्कुराहट सिमटी। उसने ताशफीन की तरफ देखा जो उसे देख रहा था। हिबा के देखने पर मुस्कुराया तो हिबा सटपटाकर नजरें झुका गई। ताशफीन की मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी। सही कह रही है रिदा, वाकई बहुत टेस्टी खाना बना है। अब तो मैं रोज़ यहाँ आपके घर ही खाना खाने का इरादा रखता हूँ। हमजा ने खाना खाते हुए उसकी तारीफ की तो वो सिर्फ मुस्कुराई। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। हिबा ने रोज़ रोज़ खाना नहीं बना सकती तुम्हारे लिए। ताशफीन ने उसे घूर कर झिड़का तो हिमजा मुँह बसोर कर रह गया। इन दोनों की नोक-झोंक में खुशगवार माहौल में सब ने लंच किया। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला तो वो सब लॉन्च में बैठे थे। ताशफीन और हमजा ऑफिस की बातें लेकर बैठे थे। हमजा, मुझे और भाभी को आइसक्रीम खिलाने के लिए चलना है रात को आपने लेकर। चाय की सिप लेते हुए रिदा ने उसे कहा। हिबा नहीं जाएगी कहीं, रिदा तुम चली जाना हमजा के साथ। ताशफीन ने हिबा के लिए मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी, उसे वो खुद लेके जाएगा जब मूड हुआ। मैं आज नहीं लेकर जा सकूंगा रिदा, आज मुझे कुछ काम है, फिर किसी दिन लेके चलूंगा। हमजा ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए उसे कहा। किसे ढूंढ रहे हैं हमजा आप? रिदा ने उसे इधर उधर देखते हुए पूछा। पप्पू और अलीज़ा नहीं दिखाई दे रही? हाँ, घर पे नहीं है। अलीज़ा 10 बजे उठकर यूनिवर्सिटी गई थी, अभी लौटी नहीं। पप्पू भी कहीं गई हैं मूड फ्रेश करने। रिदा ने सर पर नज़र जमाए उसे जवाब दिया। तुम लोग बातें करो, मैं आराम करूंगा थोड़ी देर। ताशफीन को थकन महसूस हुई तो वो उठकर अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर हिबा वहीं बैठी रही, फिर वो भी उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। अब लाउंज में रिदा और हमजा रह गए थे। वो दोनों बातें कर रहे थे तब अलीज़ा लाउंज में दाखिल हुई तो उसे देखकर हमजा के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। कैसी हो अलीज़ा? हमजा ने मुस्कुराकर उससे पूछा। वो दोनों को एक नज़र देखकर आगे बढ़ रही थी जब उसे हमजा की आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ, उसने मुड़कर सर्द मोहरी से उसे जवाब दिया। एक्चुअली मुझे कुछ काम था तुमसे, क्या तुम इजी हो? हमजा ने उसके सर्द मोहरी को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। रिदा ने ठठक कर उसकी तरफ देखा, फिर अलीज़ा की जानिब देखा। अलीज़ा को उसके चेहरे पर दुख के तासुरात नजर आए तो वह मुस्कुराकर वापस आकर सोफे पर बैठ गई। जी ज़रूर, क्या काम है तुम्हें? अलीज़ा रिदा के तासुरात देखकर रूम में जाने का इरादा मुस्तरद करते हुए वहाँ मुस्कुरा कर बैठ गई। या नहीं, बाहर कहीं आइसक्रीम खाने? हमजा उसके वापस बैठने पर मुस्कुराया। उसने खुश होकर उसे आइसक्रीम की पेशकश की। हाँ, क्यों नहीं। वेट ओनली 10 मिनट्स में अभी रेडी होकर आई। अलीज़ा रिदा के तासुरात से महसूस होते हुए उठी। उसे हिबा के चेहरे पर दुख तासुरात बहुत कुछ समझा चुके थे। उसे बदला लेने के लिए अलीज़ा ने हमजा की पेशकश कबूल कर ली। रिदा की आंखों में आंसू भर गए। उसने एक जख्मी निगाह हमजा पर डाली और कमरे की तरफ भाग गई। दूसरी तरफ हमजा उसके आंसू देखकर परेशान हो गया। क्या ज़रूरत थी उसके सामने आइसक्रीम की पेशकश करने की? अभी इसे मना किया था कि टाइम नहीं है, और अब ये जज्बाती लड़की रोती रहेगी। खुद को डांटते हुए वो उठकर रिदा के रूम की जानिब बढ़ा, लेकिन आगे से अलीज़ा आते हुए दिखाई दी। चलें? अलीज़ा ने मुस्कुराकर उसे कहा तो वो हाँ में सर हिलाकर उसके साथ बाहर निकल गया।